dear student. Let's start the today's new chapter. Name is coordination compound. The chapter number 9 of the 12th. This is the coordination compound. What is meant by coordination compound? ये वीडियो से पहले समझेंगे हम. So this M is the metal. That is the metal ion. Complex compounds are a special class of compounds in which the metal atoms or ions are bound to a number of anions or neutral molecules. In modern terminology, these compounds are called coordination compounds. The coordination compound means the metal ion are reacted with the anion या neutral molecule के साथ. The formation of the bonding, that is the called as the coordination compound. देखो, this is the metal और ये anion उसके आजू बाजू में, they form the bond and the formation of the coordination compound. The coordination compound in second name is also called as the complex compound. Okay, see this, how does the formation of bonding? That is the metal and anion are react with metal. Okay, याद रखना, metal, M is indicated at the metal, any metal element and the anion. Okay, the formation of bonding, that compound is called as the coordination compound or complex Coordination compound. compounds or complex compounds are a type of addition compounds. When two or more stable compounds are allowed to combine in stoichiometric ratios, crystalline compounds are formed. These are known as addition or molecular compounds. The two solutions are combined and we heat it. दो सॉल्यूशन को हमने ऐड किया, जैसे हम क्रिस्टलाइजेशन कॉपर का करते हैं. वाटर को डिज़ोल्व किया कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट वाटर में डिज़ोल्व किया, देन हम हीट करते हैं. हीट करने के बाद मतलब हमने क्या किया, वाटर में कुछ तो भी एडिशन किया, दैट्स वाई इट इज़ द एडिशन. और उसको हीट करने के बाद कुछ क्रिस्टलाइन कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट. दैट टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर कंपाउंड. ऐड किया एडिशन कंपाउंड और क्रिस्टलाइजेशन हीटिंग ऑफ करके कुछ टाइम पीरियड में प्रोसीजर के बाद जो हमें मिला, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर कंपाउंड. हम अब कोएडिशन कंपाउंड के टाइप करते हैं. फर्स्ट इज द एडिशन कंपाउंड, कुछ लिक्विड ऐड किया और हीट करने के बाद हमें कुछ मिला लाइक क्रिस्टलाइजेशन, तो दिस इज द कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर कंपाउंड. नेक्स्ट, For example, when saturated solutions of potassium sulfate and aluminium sulfate are mixed and heated till the crystallization point is reached, we get the well-known compound potash alum. अगर हम पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं इन वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंड देन उसको हीट करते हैं कम्प्लीटली, जब तक वो डिज़ोल्व नहीं होता, और कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने के बाद हमें क्रिस्टलाइजेशन उससे ये मिलता है, और ये जो मिलता है इसको बोलते हैं हम पोटेशियम अलम. दैट इज ऑल्सो द एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड. ओके, यहाँ पे हमें मिल रहा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑल्सो. Okay, the potassium alum. See? Similarly, if we add a solution of potassium cyanide to a white precipitate of nickel cyanide, the precipitate immediately dissolves and a red-orange solution of a new compound is obtained. अगर हम पोटेशियम साइनाइड में वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम साइनाइड का जो सॉल्यूशन है उसमें हम निकल साइनाइड ऐड करते हैं, ऐड ही कर रहे हैं. ऐड करने के बाद हमें ऑरेंजिश कलर का जो कंपाउंड मिलता है. सीरियस प्रोसीजर देखो, On the ऑरेंजिश बन basis रहा of their nature, addition or molecular compounds are divided into two. और हमें क्या मिलता है, ऐड किया पोटेशियम साइनाइड वाइट प्रेसिपिटेट में, हमने सोडियम साइनाइड को ऐड करने के बाद हमें ऑरेंजिश कलर का पिगमेंट मिल रहा है, दैट इज द एडिशन कंपाउंड. और एडिशन कंपाउंड के टाइप हम देखेंगे. एडिशन कंपाउंड आर डिवाइडेड ऑन टू टाइप्स. Categories. सो दिस, They are double salts and coordination
or complex compounds. The addition compound is divided. Addition or molecular compound are divided on two types, double salt और coordination compound. और जो हम देखने वाले दैट इज द हमारा कोऑर्डिनेशन. डबल सॉल्ट तो हम नहीं देखेंगे, हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, कोऑर्डिनेशन और ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अब इसको हम थ्योरी में देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, दिस इज द चैप्टर. A coordination compound consists of central metal atom और ion surrounded by atom or molecule. अभी जस्ट मैंने बोला कि वहाँ पे मेटल था, राइट, इस तरह से उसके आजू बाजू में क्या था, आयन थे और बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. फॉर एग्जांपल द कीमोथेरेपी ड्रग, राइट, कौन सा थेरेपी कहाँ पे यूज होता है कीमोथेरेपी, कैंसर पेशेंट के लिए. तो कीमोथेरेपी ड्रग दिस इज प्लेटिनम. That is this, the P10NH32Cl2 is the coordination compound in which the central platinum metal ion is surrounded by two ammonium molecule and two chloride ion. The central platinum, that is the platinum ion, are surrounded by two ammonium ion, right? This two ammonium ion and chlorine से, see, इस तरह से वो surrounded है, two ammonium ion and chlorine से, this is the surrounded, like see, central platinum ion is surrounded by two ammonium ion, like अनायन से इन्होंने बॉन्डिंग की. ये जो हमारा प्लैटिनम आयन है ये हमारा क्या है, मेटल है, और बाकी के क्या है, अनायन है, सी, और टू क्लोरीन एटम. इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है. तो इसमें जो प्लैटिनम है हमारा, ये जो हमारा प्लैटिनम दिख रहा है, दिस इज़ द मेटल. ये जो प्लैटिनम हमारा दिख रहा है दिस इज़ द मेटल, और ये बाकी के जो दिख रहे हैं आजू बाजू के, राइट, दिस इज आजू बाजू के हमें दिख रहे हैं ये जो, दैट इज द अनायन. और दैट फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स ऑफ कीमोसेशन जो यूज हो रहा है, दैट इज द कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड. जो मिला है हमें वो ड्रग कौन सा है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला. अंडरस्टूड. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है. जैसे यहाँ पे हमने अभी जस्ट फर्स्ट वीडियो में मेटल देखा था, मेटल के आजू बाजू में दूसरे अनायन अटैच थे, लाइक एम था और एल एल करके ऐसा स्ट्रक्चर हमने जस्ट वीडियो में, तो एग्जैक्टली वही है, अंदर में मेटल और आजू बाजू में अनायन अटैचमेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लाइक ओके. So platinum metal surrounded by two ammonium molecule, two chloride ion. The species surrounding the central metal atom or ion are called as the ligand. और the species है surrounding the central metal atom, ये जो species है उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये हमारा, अब ये हमारा कीमोसेशन में यूज हुआ है, दिस इज द स्पीसीज सराउंडेड द मेटल आयन. प्लैटिनम के आजू बाजू में कौन सराउंडेड है, मेटल अनायन सराउंडेड है. और इस स्पीसीज को क्या बोला जाता है, ये पूरे जैसे क्लोरीन है, अमोनिया है ना, ये दोनों, इनको इन सबको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज द लिगैंड. इसको बोला जाता है अनायन को लिगैंड आर अटैच विथ वेयर, लिगैंड आर अटैच विथ प्लैटिनम मेटल. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज, ये पूरा क्लोरीन अमोनिया जैसे एल था उसके सराउंडेड में है ना, ये वीडियो में हमने अभी जस्ट देखा, इसके सराउंडेड में है ना एल था, राइट, इसके सराउंडेड में देखो एल है, राइट, है ना. तो दैट इज कॉल्ड एज द लिगैंड, दिस anion and it is the metal. So this is also here also the anion are surrounded, and chlorine ammonia that is surrounded by anion, this is called as the ligand. See here, the ligand are linked directly to the central metal ion through the coordination bond. और ligand is directly attached to the coordination और link है ना, बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट. यहाँ पे देखो ना, डायरेक्टली अटैच है, तो सेंट्रल मेटल आयन के वजह से वो डायरेक्टली अटैच है. और क्या फॉर्म किया है उन्होंने, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किया है. ये जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. और इसके वजह से ये सेंट्रल मेटल आयन को, दैट इज द प्लैटिनम को, हमारे सेंट्रल मेटल आयन को डायरेक्टली वो अटैच है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उसने फॉर्म किया है, राइट, थ्रू द कोऑर्डिनेशन. Coordination bond occur when the shared electron pair contributed by ligand. और ये एक दूसरे को क्या शेयर कर रहे हैं, वो ligand यहाँ पे contributory by the share of ligand, है ना. उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, एग्जैक्टली यही किया है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ही उन्होंने बॉन्डिंग फॉर्म की ना, विदाउट इसके बॉन्डिंग बनता है क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्लैटिनम अपने कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मेटल ही अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, अनायन अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, देन फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग, राइट. तो एग्जैक्टली वो शेयरिंग एंड submitting the formation of the bonding. A coordination bond is conveniently represented by an arrow. म्हणजे coordination bond is conveniently किससे represent किया जाता है, arrow bond से, right.
दिस, वो रिप्रेजेंट विच बॉन्ड इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आर रिप्रेजेंट बाय द एरो. When the arrow is head point to the electron acceptor, अगर एरो का हेड पॉइंट, एरो ऐसा हेड पॉइंट दिया है मतलब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. उसका हेड, ये जो हेड उसका दिया होगा जिसी दिशा में, मतलब वो एलिमेंट या वो इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ले रहा है. द सेंट्रल मेटल आइटम और आयन यूजुअली एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल मेटल आयन और आयन जो भी रहते, जो मतलब हमारा अभी प्लैटिनम है यहाँ पे सेंट्रल में, तो वो यूजुअली क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्पीसीज रहते हैं या एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर वाइल द लिगैंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर. या तो वो एक्सेप्ट करते हैं या डिफिशिएंसी रहते हैं या वो डोनेट भी करते हैं. लाइक the coordination compound having a metal ion in the center are commonly in a cisplatin to ammonia molecule and to chloride ligand utilize their lone pair of electron from there. See, है ना, किस तरह से बॉन्डिंग अभी जस्ट मैंने बताया. द हियर इज द मेटल एंड दिस इज द यूटिलाइज. देखो किस तरह से इन्होंने इस अमोनिया का एक इलेक्ट्रॉन, प्लाटिन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अमोनिया का, प्लाटिन का, अमोनिया का, क्लोरीन का, अमोनिया का, तो इस तरह से इन्होंने शेयरिंग एंड डोनेट क्लियर करके इलेक्ट्रॉन डोनेट और शेयरिंग करके बॉन्डिंग फॉर्म की है. द डोनर ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एटम, द लिगैंड आर डायरेक्टली अटैच टू एटम द बॉन्ड ऑफ विथ प्लेटिनम. राइट, डोनर अमोनिया और क्लोरीन ने खुद से इलेक्ट्रॉन डोनर किया, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली लिगैंड बॉन्ड फॉर्म किया. लिगैंड, राइट, दिस इज द लिगैंड. ओके, अभी जस्ट मैंने बताया. और इन्होंने डायरेक्टली कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किया है. ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी लुक्ड अपॉन एज अ लीवियस एट इज बेस्ट इंटरैक्शन. अगर हम इसको देखा जाए तो दैट इज द लीवियस बेस इंटरैक्शन से हम पता कर सकते हैं दैट इज द लिगैंड. और इसको हम डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमें समझना है तो हमें समझना पड़ेगा लिगैंड. व्हाट इज मीन बाय लिगैंड? लिगैंड मतलब मेटल को अटैचमेंट ऑफ अनदर एलिमेंट और फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. जिसने भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किया दैट इज द अनायन, दैट अनायन इज कॉल्ड एज द लिगैंड. तो इसको समझना पड़ेगा. द सेंट्रल मेटल आयन बिगिन द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर सिविस एज लिवियस एसिड. जो भी सेंट्रल मेटल आयन जो एक्सेप्टर करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो भी इन्होंने इनके साथ बॉन्डिंग की है सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज वो एक्सेप्ट करता है. मतलब कौन एक्सेप्ट करता है? मेटल एक्सेप्ट करता है. दैट इज कॉल्ड एज द लिगैंड. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड. कितने टाइप्स होते हैं लिगैंड के जो कोऑर्डिनेशन नंबर में बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ओके.